Hi Vidhi, welcome to Unfiltered with This. I'm so happy to have you. I mean, this gonna be totally unfiltered कि हम पहली बार ही सीधा यहीं पे बात कर रहे हैं. So I'm really excited because जो आपका profession or field है, that really excites me. So first of all, can we please have an introduction from you? Thank you so much, Divya, for having me here. It's really exciting for me as well. And I'm so enthusiastic to talk about mental health and talking like this in a candid chat is like a really great opportunity. Divya, I'm actually an engineer turned psychologist, you can say. I Wow. completed my I completed my graduation in electronics and communication engineering, and then I taught in school. I used to teach physics for 5 years, and while my years into teaching, I realized that I'm better as a counselor, you know. And then I pursued my master's MA in counseling psychology. And since Perfect. then, I completed my master's in 2020. And since then, last 4 years, I've been working as a counselor and a therapist. That's actually very amazing. Mental health का topic is something I am very interested and curious in because हमारे यहाँ पर इतना नहीं. अब तो आ गया इट्स एन ट्रेंड कि मेन हेल्थ मैटर्स, वुमेन हेल्थ मैटर्स, मेंटल हेल्थ मैटर्स, बट अर्लियर ऐसा कुछ नहीं था. सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड व्हेन आई सॉ योर प्रोफाइल. आई वाज लाइक ये तो चाहिए यार, ये तो अपने पॉडकास्ट पे हमें चाहिए कि ताकि पीपल को और ज्यादा अवेयरनेस आए. तो व्हाट डू यू Yeah. थिंक कि टाइम हैज See, चेंज्ड? actually, yeah, definitely. Actually, physical health or mental health are not different anymore. Like, actually, they राइट. are just overall well-being आपकी. कई सारी problems जो physical आपको symptoms दिख रहे हैं, they are coming from your mental health. लोगों राइट. को पता ही नहीं होता. You keep running to the doctor, and many times doctors also say that it's just your thoughts. maybe आप ज्यादा सोच रहे हो इसलिए होता है. और हम्म. कई बार अगर आपका डॉक्टर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता तो they might prescribe you medication, but करेक्ट. actually you don't need those medications. इतना ज्यादा स्लीप मेडिकेशन लोग आजकल ले रहे हैं, एंजाइटी के लिए मेडिकेशन ले हम्म. रहे हैं, डिप्रेशन के लिए ले रहे हैं. राइट. So many medications are not required. आपका blood pressure, thyroid, hormonal issues, so हम्म. many things are coming from actually your mental health, the kind of thoughts you are having. ठीक है, तो आपके दिमाग में जो जा रहा है हो रहा है वो आपकी बॉडी पे दिख रहा एक्चुअली रिसेंटली फिगर आउट यही कि हमारी फिजिकल हेल्थ पे जो भी हमारी डिसीजेज आ रही है, दैट समहाउ रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ इशू. आई रिसेंटली फिगर आउट कि आई थिंक शुगर या बीपी का कुछ था कि वो तब होता है जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में और बॉडी इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रही है, तो वो इस फॉर्म ऑफ डिसीजेस में आके आपको बता रही होती है कि दैट नीड हेल्प. है. Our mind, body and soul, three हम्म. components are there and they are not different. It's just ओके. our overall well-being. जो भी माइंड में चल रहा है, it will हम्म. affect your soul, it will affect your physical being. So these all राइट. things are connected. And same way, your behavior, feelings, and emotions are also connected. Whatever ओके. you feel, वो आपके इमोशंस बन जाएंगे. इमोशंस राइट. आपके जैसे हैं जैसे आप बिहेव करोगे सामने वाले के साथ. समझ रहे हो? राइट. एंड या. उसी तरह से आप सामने वाले को परसीव करोगे. करेक्ट. ये सारी चीजें इतनी बेसिक है और इतनी नीडेड है हमारी डेली लाइफ में, बट हमें स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता कि ये सब एग्जिस्ट करता है. बट आई एम ग्लैड आज के टाइम पे सोशल मीडिया है जो हमें हेल्प करता है अवेयरनेस में. आई हैव बीन पर्सनली थ्रू डिप्रेशन इन 2016, नो 2019. So even I have taken the medications for 3 months. And then later when I figured out कि भाई ये तो सब overthinking का process चल रहा था, which leads to depression, which leads to severe depression, कि मुझे medication तक लेना पड़ा for a month or twice. And then जाके मैंने अपनी mental health पे focus किया कि mental health ठीक रखनी है, and उसके बाद I recovered from that. तो इतना ज्यादा है कि हमारे में awareness है ही नहीं. इवन Yeah, माई right. फैमिली यूज टू थिंक कि भाई कुछ नहीं है, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप बस बहाने ढूंढ रहे हो, आपको कुछ नहीं हो रहा, आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो. तो ये चीज है ही नहीं, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही नहीं है अभी तक इस चीज का. इज इट? Exactly. Yeah, exactly. बाहर दूसरे को सामने ये दिखेगा, you are lazy, you are just sitting, you are just sleeping, राइट. you are not doing anything, but they don't know what's going on inside you. आपके दिमाग में इतना चल रहा है. Many a times, because of your overthinking, you suffer from cognitive fatigue. Cognitive fatigue is your दिमाग is tired. समझ लो, ओके. कंटिन्यूस हाँ. थॉट्स की वजह से. इन दैट्स वाई बिना कुछ किए यू फील टायर्ड. आप बैठे हुए हो बट यू डोंट हैव एनर्जी टू डू एनीथिंग. तो उसमें से राइट. लोग बोलते हैं देखो वीकनेस आ गई है, अनीमिया है, देखो ये विटामिन की कमी है. हो सकता है विटामिन की कमी भी हो सकती है डेफिनेटली, हाँ. बट इट्स मोर लाइक कॉग्निटिव फटीग इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो हम इस कॉग्निटिव फटीग से कैसे, लाइक कुछ सिम्टम होता है या हम कैसे रिकवर कर सकते हैं कुछ?
बिकॉज It's आई just हैव बीन that समवन हु ओवरथिंक्स अ लॉट। मतलब मुझे लगता है कि मेरी फिजिकल ज्यादा, मेरा माइंड टायर्ड है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको रिकवर करने का। तो क्या yeah, कर सकते actually, it's just that being more present and being connected to with your own self, हैं? कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को खुद आइडेंटिफाई करने में पता चलना चाहिए मुझे। आई शुड बी सेल्फ अवेयर कि राइट, मेरे सेल्फ को अवेयर। जो प्रॉब्लम, हाँ, मेरी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे को, या मेरी मेंटली आई फील डिफरेंट, तो व्हाई डू आई फील डिफरेंट, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ या फिर मेरे को किसी चीज का फियर है, व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली। इफ यू हैव सर्टेन फैमिली मेंबर, कोई क्लोज सर्कल में है जिसके साथ डिस्कस कर सकते हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, टू डिस्कस इट। अगर कोई नहीं है तो गो टू अ थेरेपिस्ट, गो टू अ यू नो। थेरेपिस्ट, तो राइट। तो यू गेट अ बेटर पिक्चर, बेटर क्लैरिटी, जब एक थर्ड आई पर्सन की थिंक व्यू या से देखता है। I think therapist is a better option rather than your family, because family will judge you from their perspective, their behavior. Ultimately वो family है, तो वो भी उसी सर्कल का ही पार्ट है जिसका मैं हूँ। तो आई थिंक इट्स बेटर टू हैव अ थर्ड पार्टी ओपिनियन। थेरेपिस्ट से आपको एक अलग एंगल का पर्सपेक्टिव मिल जाता है, तो दैट्स वे बेटर ऑप्शन। इट्स नॉट जस्ट दैट डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग के लिए आप थेरेपिस्ट के पास जाओ। एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इफ यू थिंक यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम वेल, टाइम मैनेजमेंट के लिए जाओ थेरेपिस्ट के पास। इफ यू फील दैट आपको अपने गोल्स, अपने पर्पस लाइफ में पता नहीं है क्लियरली, या अपने करियर में यू आर नॉट फीलिंग दैट हैप्पी, देन व्हाट शुड आई डू, go talk to a therapist, you know। As a therapist we give you many options, we give you a new view towards different things in life, you राइट, know। राइट। So yeah, there are many options. आई It's not एग्री, just that. आई टोटली Yeah, अग्री, बिकॉज देयर हैव बीन अ टाइम एंड देयर हैव बीन अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि आप थेरेपिस्ट के पास तब जाते हो जब आपको दिमाग की प्रॉब्लम है, या आप पागल हो, या आप ओवर थिंकिंग के साथ आप जी नहीं सकते हो, तो नाउ यू नीड अ थेरेपिस्ट। बट नो, यू नीड अ थेरेपिस्ट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, जस्ट टू हैव अ डिफरेंट perspective ऑफ योर लाइफ एंड नॉन जजमेंटल स्पेस, बेसिकली आई से। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, दे गोना जज यू, बिकॉज वो आपको पास्ट जानते हैं। तो दे विल नेवर लेट यू कि हाँ भाई जाओ, उड़ जाओ हवाओं में। So it's better to have a right. therapist in that sense. Perfect. You know, that's, I'm gonna have a lot of insight. The people who are gonna watch this, they will love it. Also, we have some questions from our tribe, like from other people. So let me do that. Uh, First question is, does sleep really gives the rest one need, or how is rest different from sleep? Sleep is actually a very, very important part of our physical and mental health. Rest is, I would say, rest is just kind of relaxation. ठीक है। Okay. अगर if you work 7 days a week, 6 days a week, for say you are working 6 days a week and आप एक दिन छुट्टी ले रहे हो, so Hmm. that day is your rest from your professional work. You are relaxing on that. So it's kind Okay. of rest. You are just sitting on a couch, reading a book or watching TV. That's rest. Hmm. So that Right. you just want आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप Hmm. आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, दैट्स रेस्ट। Hmm. बट स्लीप इज लाइक अ मच डीपर स्टेट, जहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस गोइंग इन योर बॉडी। Your Okay. hormones are like your hormones are being released. Your every cell tissue in your body like It's being regenerate, repaired. repaired It's, every muscle. It's like हमारी body is undergoing maintenance जब हम सो रहे हैं। ठीक है। okay. तो जैसे हम कार Hmm. को साल में एक दो बार मेंटेनेंस के लिए देते हैं, उस तरह से हमारी बॉडी वो अंडरगोज मेंटेनेंस एवरी सिंगल नाइट। Everything So is it's right. very important that you have good amount of sleep so that your body gets proper rest and is ready for the next day, राइट, you know। यूजुअली पीपल से कि 6 to 7 आवर्स का स्लीप एडल्ट के लिए नेसेसरी है। तो क्या 6 to 7 आवर्स सबके लिए है, या फिर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? किसी के लिए 6, किसी के लिए 5, किसी के लिए 9 आवर्स, ऐसा कुछ है? In general, I would say 7 to 8 hours you should sleep a day. ठीक है, सेवन ओके। टू एट आवर्स अच्छी नींद आपको आनी चाहिए। हम्म। 6 hours also work for some people. I have seen जो लोग ज्यादा मेडिटेशन में हैं, योगा में हैं, हाँ। who are more connected with their self, they can kind of, जैसे आपने बोला रेस्ट, तो जब आप मेडिटेट कर रहे हो एक्चुअली योर बॉडी इज इनटू डीप स्टेट ऑफ रेस्ट होंगी। ठीक है। तो राइट। अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसके लिए 5-6 घंटे भी इनफ होते हैं, बिकॉज दे आर हाँ, मेडिटेटिंग, यू नो। दे आर मेडिटेटिंग, दे आर तो रेस्टिंग इनफ। yeah, yeah. So 7-8 hours is a good amount of sleep. We should all stick to that, I think. एंड व्हाट अबाउट किट टाइमिंग ऑफ स्लीप? फॉर Yeah, एग्जाम्पल आई very. से कि कई लोग 10 बजे सो जाते हैं एंड दे वेक अप अराउंड 4-5, विच इज अ गुड टाइमिंग, जो कहा जाता है कि इट्स अ हेल्दी टाइम। एंड कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो लेट लेट ही होते हैं, रात को 2-2:30 बजे सोते हैं, सुबह 9-10 बजे उठते हैं।
and they are still somehow tired even after getting 7 to 8 hours of sleep. तो Yes. टाइम्स के लिए क्या है यहाँ पे? We all have a circadian rhythm, circadian cycle of our body. हाँ, ठीक है, राइट ऐसे बोला जाता है कि रात को 10 से 1 के बीच में हाँ certain hormones are released. ठीक राइट है, और 10 to 11 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे होता है वो। तो आप कोशिश करो कि 10-11 के बीच में आप सो जाओ, सो दैट वो जो hormonal release है, you can हाँ have that and ओके get up with the light of day. जैसे ही सन राइज हो रहा है, हम्म उस टाइम पे you get up. So it's like राइट you get all those good hormones, हाँ beautiful sunlight in the morning, vitamin हम्म D which is necessary. तो उस हिसाब से अगर आप काम करोगे जैसी हमारी हम्म circadian rhythm होनी चाहिए, तो राइट it's like the most beneficial. 10-11 बजे सो जाओ, सुबह 6-7 के बीच में उठ जाओ, हाँ हाँ enough, you know? So that's the best timing I would say. तो बेसिकली जो बंदे नाइट आउल बन के जाग रहे हैं वो अपनी बॉडी एंड स्लीप के साथ हार्म कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे. Yeah, see, everybody is different. For some, it's like they are the most productive at night. Miss, हाँ specifically, I would say students जो पढ़ाई कर रहे हैं डे देना. राइट तो इट्स ओके, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में 1-2 साल आपको इस तरह से मेहनत करनी है, आपको बोर्ड देना है, एंड यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव एट दैट टाइम ऑफ द हम्म डे, देन यू शुड डू इट एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अफेक्टिंग योर ओवरऑल हेल्थ. अगर आपको लग रहा है ओवर कि नहीं, दिन में मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ एंड इट्स हम्म कॉजिंग डिफरेंट इश्यूज इन माई बॉडी, देन यू शुड स्टॉप इट and ओके find a middle ground, or otherwise you can keep doing that. परफेक्ट. ऑल्सो अब हमने एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करी तो इसमें डिफरेंस क्या है? फियर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, आर दीज थ्री डिफरेंट या फिर एक ही चैन के लाइक तीनों हिस्से हैं? Yeah, they all three things are different. Fear is more like momentary, कि आपको जब पता है थ्रेट आपके पास पास है, आपके सामने हम्म थ्रेट है, उस टाइम हम्म के लिए you will be fearful, right? ओके Anxiety is a prolonged state of having those fearful thoughts, feeling हम्म multiple sensations in your body. ठीक है, ओके fear ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, पर हम्म anxiety, a person can experience anxiety for days, months, weeks, years also. ओके ठीक है, it's more in the brain that you keep thinking about certain intrusive thoughts, negative thoughts, fearful things, and कई बार जो reality नहीं है उसको आप reality मान के सोचते रहते हो. And then ट्रू your body feels, your mind feels that you are not safe in the situation. और हम्म एक्चुअल में जो रियलिटी सामने नहीं है वो भी अगर आप दिमाग में सोच रहे हो तो योर बॉडी फील्स लाइक एज इफ इट इज देयर. लाइक अगर मुझे राइट 2 दिन बाद कोई स्टेज पे मुझे स्टेज पे जाकर आई हैव टू गिव अ स्पीच, so हम्म it's going to come after 2 days, but I will राइट feel the same fear right now just thinking राइट of that कि मुझे हाँ presentation देनी हाँ दिस है, right? हैपेंस टू So मी. this is anxiety. This is actually anxiety. Okay, This and happens to me when I want to travel somewhere. Like, या आज किसी ने मुझसे बात करी कि हम नेक्स्ट संडे जाएंगे या हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे या 4 मंथ्स लेटर जाएंगे, एंड मेरे पेट में अभी से दर्द शुरू हो जाएगा कि ओ आई हैव टू गो, आई हैव टू ट्रैवल समवेयर. आई डोंट नो कहाँ से ये फियर और या एंजाइटी मेरे में आया, बट बिकॉज बिफोर लॉकडाउन नहीं था, एंड बीइंग इन अ लॉकडाउन हम सब घर पे थे एंड आई हैव नॉट ट्रैवल्ड एनीवेयर, और अब मैं जाती भी नहीं इस चक्कर में, बहुत कम ट्रैवल करती हूँ कि मुझे एंजाइटी होती है कि अगर मुझे जाना पड़ गया तो हो. people have different types of anxiety. Social anxiety होती है, health anxiety होती है. So yeah, for that, as I said, you need to talk to a mental health counselor, therapist, or a psychologist, something like that. And depression, आपने पूछा कि depression and anxiety में हम्म क्या difference है? Depression, I would say, is, yeah, if you are in a state of anxiety for very long, you ओके can enter depression. ठीक है, ओके पर डिप्रेशन कई तरह से आ सकता है. जैसे किसी कोई अगर बहुत लंबे समय तक एंजाइटी में है तो इट विल कम सडनली अ डिमाइस ऑफ अ लव्ड वन, तो सडन स्टेट ऑफ बीइंग इन सैडनेस or something, or being in abusive toxic relationship for so long, or there can be many reasons for depression, but it's a complete different state. ठीक है, हम्म एंजाइटी से रिलेटेड है क्योंकि एंजाइटी में बहुत लंबे टाइम रहती है, डिप्रेशन में आप जा सकते डिप्रेशन फॉर्म कर लिया. हो. या तो अल्टीमेटली देखा जाता है सबका रूट कॉज अगर हम निकालें तो इट्स बिकॉज कि लोगों को अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, वो अपने इमोशंस के साथ बैठते ही नहीं है. अगर हम किसी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठ भी रहे हैं कुछ डिस्कशन या टॉपिक करने के लिए तो हम ऊपर ऊपर की लेयर डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस हो गई बट उसके इमोशंस क्या है वो हम डिस्कस ही नहीं करते कभी. इज दैट सो? exactly connecting with your own self, you know, can solve a lot of our problems.
हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी चीजों के बारे में. इट्स जस्ट दैट वी डोंट सिट विद दैट अनकंफर्टेबल फीलिंग. हम भागते हैं, हम सोचना नहीं राइट. चाहते उसके बारे में. हम दूसरे दूसरे क्राइटेरिया सोच रखते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी. पर हम्म. क्यों मुझे मैं भाग क्यों रही हूँ, मुझे डर क्यों लग रहा है, वो नहीं हाँ. सोचते हम. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. ओके, व्हाट आर द फर्स्ट साइंस कि मुझे पता लगे कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ या इट्स अबाउट टू हैव मी? डेफिनेटली बहुत सारे साइंस हो सकते हैं, एंड दे कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक बीइंग इन अ परसिस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस. आप थोड़ा, आप दुखी और भारी भारी फील करोगे. यू विल हाँ. लूज इंटरेस्ट इन मोस्ट ऑफ योर डेली. इवन ब्रश करना, नहाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए हाँ. हु आर राइट. इन द फेस ऑफ डिप्रेशन, राइट. तो बेसिक चीजें करना मुश्किल हो जाता है. आप यू लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. आपकी एपेटाइट, या फिर आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा खाओगे या फिर बिल्कुल नहीं खा पाओगे. बहुत ओके. ज्यादा सोओगे या फिर बिल्कुल नींद नहीं आएगी. ठीक है, राइट. वेट लॉस, वेट गेन, ये भी किसी का बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, किसी का लूज हो जाता है. यू विल फील दैट एम्प्टीनेस इनसाइड यू, लोनलीनेस, एक वो हॉलोनेस अंदर फील होगी, राइट. कुछ कुछ लोगों को आईबीएस, लाइक स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, किसी किसी को डायरिया, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन. इन वुमेन आई हैव सीन उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है. ओह. इतना ज्यादा गहरा असर पड़ता है, मेंटल कंडीशन का राइट. बॉडी और हॉर्मोन. So it can be ओके. different for all. But it's just that आपको एक चीज देखनी है, you don't feel like you were before. आपको लगता है कि things have changed, I have changed for bad. जैसे बुरी चीज, like जो हाँ. अच्छा नहीं है वैसा हो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे. There is some change. Then you should talk to a mental health counselor. राइट. पीपल वेट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. अगर जैसे मुझे विद इन अ मंथ और 2 मंथ ऐसा फील हो रहा है, तो मैं फिर भी किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर को कंसर्न नहीं करूंगी. अल्टीमेटली वो वर्स हो जाएगी चीज जब तक. व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन? लाइक आजकल लोग बहुत लेमैन लैंग्वेज में प्रोक्रास्टिनेट यूज कर रहे हैं. अरे, प्रोक्रास्टिनेशन, अरे आई एम लेजी. सो दे Hmm. यूज इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज. कह रहे हाँ मैं तो हूँ. तो हाँ. इज इट सेम लेजी एंड Procrastination, प्रोक्रास्टिनेशन? procrastination is continuously thinking that I'll do this, पर मैं उसको हर चीज रोज, मैं आज उठी मैं उसको कल पे डाल दूंगी. ओके. रोज मैं उसको डिले करती जाऊँ. ठीक है, अब प्रोक्रास्टिनेशन विल बी डिफरेंट फॉर यू. रीजन बिहाइंड प्रोक्रास्टिनेशन विल बी डिफरेंट फॉर यू एंड डिफरेंट फॉर मी. हो राइट. सकता है मैं वो चीज सोच रही हूँ, मेरा गोल है, मैं करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर परफेक्शन. नहीं, मैं परफेक्टली नहीं राइट. करूंगी. जब मेरा परफेक्शन है, आपके लिए इट कैन बी फियर ऑफ सोसाइटी कि नहीं, लोग राइट. क्या सोचेंगे इसमें नहीं करें. ठीक है, तो फॉर ऑल ऑफ अस इट विल बी डिफरेंट. और राइट. आउटसाइड लोग समझते हैं शी इज लेजी, दैट्स व्हाई शी इज नॉट डूइंग. तो अल्टीमेटली राइट. दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट और सेम? So they are different. Someone who ओके. is lazy doesn't want to do anything. But वो someone सोच who नहीं is रहा है बेसिकली. procrastinating, या उसको क्या, उसको लोग बोल रहे तुम ये कर रहे हो, तो फिर हाँ मैं कर लूंगा, जो लेजी है. ठीक है, उसका हाँ. अपना कुछ नहीं. जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, दे हैव सर्टेन गोल्स, दे वांट टू डू इट. लाइक आई वांट टू अप्लाई हाँ. फॉर जॉब, आई हैव टू curate a CV for that. But I'm procrastinating, अच्छा कल कर लूँ, कल करूँ, because I don't feel ready, I don't have confidence in myself कि हाँ यार मैं अपने skills लिखूँ क्या अपने CV में. Maybe you are skilled, but वो अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हाँ, राइट. कॉन्फिडेंस नहीं आता. राइट, दिस हैपेंस हु सेड. तो ओके. इट्स रीजन विल बी डिफरेंट फॉर ऑल. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. राइट. तो प्रोक्रास्टिनेशन हमारी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है ऑन अ वेरी डेली बेसिस? जैसे अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ कि आज नहीं कल कर लूंगी, कल नहीं परसों, या जब एंड डेट आएगी मैं तब करूंगी, तो इन अ लॉन्ग टर्म इट विल अफेक्ट मी एज अ पर्सन? Yeah, yeah. See, many times procrastination is just because of lack of clarity of your thoughts. Because राइट. you are either very anxious, either you are like, uh, you know, you have certain fears, or you are very anxious. That's why you are not able to take certain steps. आप डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग इज हार्ड फॉर यू, दैट्स व्हाई यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. आई एम नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन टू थिंग्स, राइट. राइट. मेनी टाइम्स एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि a girl and a boy are in a relationship for a very long time. ठीक है, and they know that they love each other, they're going to get married and everything is fixed. But now when time comes, एक एज आ गई शादी की, लड़की बोलती लड़की को let's get married. Now suddenly the boy starts procrastinating that, oh I don't know, next year शादी करते हैं, next year शादी करते हैं. It's not that कि वो लड़का उसको प्यार नहीं करता, उससे शादी नहीं करना चाहता. It's just that जब शादी की बात आई, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई, तो उसका एक अवॉइडेंस साइड है वो एक्टिवेट हो, राइट. right. So फियर ऑफ he thinks डिसीजन that, मेकिंग. yeah, he thinks that there's a lot of responsibility behind getting married. पेरेंट्स, इन लॉ सबको वो करना. ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन का ये सारा फिजिकल मेंटल हेल्थ से रिलेशनशिप हो सकता है. दैट बिकॉज राइट. यू हैव सर्टेन हिस्ट्री,
of childhood हाँ trauma, you have certain things, that's हाँ why you are behaving in this way. ठीक है. आई थिंक अगर हम इसी आपके एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो इसी से ही कितने सारे फैक्टर्स और आ सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो कमिटमेंट नहीं है, फियर ऑफ कमिटमेंट आ सकता है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। इन दोनों सिचुएशन से दोनों पर्सन एंशियस हो सकते हैं, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है। एक ही सिचुएशन है जो लड़की को अलग तरीके से अफेक्ट करेगी, लड़की को बहुत ही अलग तरीके से अफेक्ट करेगी। तो अब ऑब्वियस बात, जैसे आपने कहा कि प्यार तो दोनों में है, बट दोनों का डील करने का तरीका अलग है। तो Yeah. इस सिचुएशन में एक हेल्दी वे आउट क्या होगा कि वो It's थेरेपिस्ट के just पास that जाए? again, yeah, I would say just talk to therapists. You know, up to now, social media में हर चीज like counselors and therapists and people are sharing things. You know, ऐसे ऐसे राइट। identify करो चीजों को. तो हाँ people have clarity. पहले तो वो नहीं थी ना, तो आपस में हाँ झगड़े होते रहते थे और ऐसी लाइफ निकल जाती थी या फिर डिवोर्स हो जाता था, अलग हो जाते थे. हाँ Right? एब्सोल्युटली। So it's just that you need to find a middle ground. जैसे अगर one person is behaving like avoidant and one person is behaving like an anxious personality, so they राइट। both fall in love with they both fall in love with each other, and then problems start coming, right? स्टार्ट। So it's just that understanding each other's patterns and then developing that developing that coping mechanism कि हम relationship हमारा अच्छा चलेगा, रह सकते हैं साथ में तो कैसे रह सकते हैं, right? राइट। So एंड understanding each other's point of view. इन दैट मीन्स ना आजकल सोशल मीडिया में अब एक प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, कि आजकल इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएशन हो चुका है, एवरीबडी इज शेयरिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब कल रात की ही बात है, आई वॉज थिंकिंग ऑन सम मैटर, मेरी किसी फ्रेंड से बात हुई एंड देन आई स्विच टू इंस्टाग्राम फॉर माई डिस्ट्रैक्शन, आई इमीडिएटली स्विच टू इंस्टाग्राम फॉर रील्स। एंड आई डोंट नो हाउ कम इंस्टाग्राम एल्गोरिदम नोज कि वो सेम कंटेंट की रील्स मुझे दिखाएगा। अब या तो अगर आप खुश हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली, उसका इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो खुशी वाली दिखाता जाएगा। अगर आप हम्म. सैड हो तो वो वैसे ही दिखाएगा आपको, फिर आप और सैड होके उस सिचुएशन को और ओवर थिंक करोगे, अरे यार ऐसा हो सकता था, वो ऐसा कर सकता था, ये ऐसे कर सकता था, हम ऐसे कर सकते थे। तो इट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। Yes. एंड विद दिस, आजकल इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएशन है, एज आई सेड, तो लोग हर चीज पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि गाय शुड बी लाइक दिस तब रिलेशनशिप वर्क करेगा, अ गर्ल शुड बी लाइक दिस तब रिलेशनशिप वर्क करेगा। तो एक प्री जजमेंटल लोगों के माइंड में बनता जा रहा है, रेदर देन Hmm. फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। वो रील को देख देख के अपना माइंड सेट करते जा रहे हैं। एंड एज यू Yeah. ऑल्सो सेड कि एक एंशियस है और एक अवॉइडेंट है, तो जब दोनों ही बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है तो मिडिल ग्राउंड कैसे आएगा? Yeah. So it's just that as I said, ठीक है, content को आप ले रहे हो, you should, again the thing comes back to बी being माइंडफुल। self-aware. Be mindful कि how राइट। much I need, how much I'm consuming. ठीक है. और राइट। अगर आप सोशल मीडिया पे आप like there are lots of coaches, with due respect to everyone, it's just that before you follow someone's advice, before you take someone's advice like that, it's a हाँ general platform, you know. तो राइट। जब क्रिएटर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है, जरूरी नहीं है आपकी लाइफ में सेम पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट, एंड इट करेक्ट। विल फिट इन योर। तो एक तो पहले चेक करो कि जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्वालिफाइड पर्सन है, सही आपको सही गाइडेंस देने के लिए या नहीं, राइट? राइट। पहली चीज ये होगी. दूसरी चीज, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, हाउ मच यू नीड टू कंज्यूम दैट. ठीक है. या मेनी टाइम्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व जस्ट बाय सिटिंग विथ योरसेल्फ, फाइंडिंग योर आप अपने जस्ट बीइंग सेल्फ एब्सोल्युटली। अवेयर दैट हाँ what I need right now, is it someone else's advice or focusing on my relationship. राइट। It's just एटलीस्ट जब that. आप एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस में हो तो सोशल मीडिया पे तो मत ही जाओ, विच आई हैव लर्नड इन अ डिफरेंट, बीइंग इन अ डिफरेंट सिचुएशन। और मैं इतना ज्यादा इंस्टाग्राम कंज्यूम करती हूँ कि एटलीस्ट जब आप एक्सट्रीम सिचुएशन में हो तो सोशल मीडिया को तो बिल्कुल हाथ ही मत लगाओ। मोर ऑफ इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स जब आप सीखते हो, जैसे हमें आपने बोला स्कूल में हमें हर चीज सिखाई जाती है, आपको हम्म। सिखाया जाता है कि हार्ट आपका कैसे ब्लड पंप कर रहा है, आपका ब्रेन कैसे हाँ काम कर रहा है, आपकी किडनी कैसे काम कर रही है, बट नोबडी टीचेस यू कि हाउ टू हैंडल योर इमोशंस. You know, एब्सोल्युटली। if you are राइट। angry, if you're sad, if you're हाँ crying, you are anxious, you are like you have certain fears, how to handle all those things. So इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है. The more you learn grounding techniques, the more you learn emotional regulation, you won't suffer from all these issues. दैट्स सो ट्रू। आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ पोस्ट जिसमें हैप्पी के भी 10 वेरिएंट थे।
सैड के भी 10 वेरिएंट है टू एक्सप्रेस कि आप सैड में भी क्या फील कर रहे हो, एंग्री हो तो क्या फील कर रहे हो। हमें सिर्फ आई गेस ब्रॉड पर्सपेक्टिव पता है, आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री, आई एम सैड, आई वांट टू क्राई, दैट्स इट हार्डली। बट इसके हम्म, अंदर इतने सारे इमोशंस है, वो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया एंड हमें पता ही नहीं है उसके हम्म, बारे में। तो हम एक्सप्रेस भी करें तो क्या करें। तो वो जो जितना भी फ्रस्ट्रेशन होता है वो एंगर की फॉर्म में निकलता है, सामने वाला ऑफेंड हो जाता है एंड देन देयर इज अ क्लेश। तो इट्स जस्ट दैट कि अगर हम सेल्फ अवेयर है, इफ वी हम्म आर कनेक्टेड टू आवर ओन सेल्फ, मैं अपने आप को जानती हूँ, तो मुझे अपना एक बिहेवियरल पैटर्न, अपना एक हम्म। इमोशनल पैटर्न समझ जाएगा कि राइट। किस किस टाइम पे मैं ज्यादा इमोशनल होती हूँ। अब हाँ। एज वुमेन, विथ आवर मंथली साइकिल ऑल्सो वी जैसे हैव आप। सर्टेन हाइज एंड लोज इन आवर मूड, ठीक है। तो हमें वो सब भी कंसिडर कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट मोर कनेक्टेड यू आर विथ योर सेल्फ, the more करेक्ट। self-reflection you do, the more easier the life will be. आई थिंक यस, अब आपने दैट मंथली साइकिल की बात करें तो यूजुअली मंथली साइकिल से बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। आई तो एटलीस्ट Hmm. सफर, मुझे पता है कि अगर मेरी बैक में पेन है या मैं ज्यादा मूड स्विंग या फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ तो दैट मीन्स Hmm. पीरियड्स आर अबाउट टू कम। अब लोगों ने Hmm. इसको भी एक अलग तरीके से, अच्छा तुम पीरियड्स पे हो, तभी तुम इतना रिएक्ट कर रही हो, इवन Hmm. इफ यू Hmm. रिएक्टिंग ऑन द राइट पार्ट, तो भी लगता है कि हाँ बिकॉज ऑफ पीरियड्स आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, अच्छा ठीक है ओके, पीरियड से ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। इज इट अ Hmm. वैलिड रिएक्शन फ्रॉम अदर्स? No, it's not. And इस, इसके ऊपर से एक और बात भी कर सकते हैं हम लोग कि हम्म। वी ऑलवेज सर्च फॉर वैलिडेशन, कि अरे अगर मैं अभी गुस्सा कर रही हूँ, अगर मैं अभी चिल्ला रही हूँ, अभी मेरे से तुम समझो कि हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है और मेरी बात सही है, करेक्ट। राइट। why you need that validation from outside कि अच्छा आप भी मेरे mood swings हो रहे हैं, I don't feel good right now, that's why I'm behaving. So in a way you also need a this thing validation कि हाँ you rest यार, तेरी तबीयत नहीं है, मेरे को तुझे इतनी परेशान नहीं करना चाहिए। हम्म। इस तरह का राइट। भी चीजें होती हैं। और बाहर से लोग लाइक इन योर, हो सकता है कि कोई आपके साथ जो है वो नहीं समझ रहा है, वो आपको बोले हाँ हम्म। देखो ये अभी तो इस टाइम में इस को ऐसे यू आर रिएक्टिंग लाइक दिस, देयर विल बी हम्म। समवन हु विल से अरे यार यू चिल, यू टेक रेस्ट, राइट नाउ यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, somebody राइट। will like say like this. हम्म। So it's just that कि people will react according to their state of mind, not your state of यस mind. एग्जैक्टली। Understand that. हाँ, एज अ सोसाइटी वी नीड अवेयरनेस ऑन दिस ऑल्सो, कि अगर बंदी गुस्सा कर रही है या रिएक्ट करे, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मूड स्विंग्स है, इट्स ऑल्सो बिकॉज कि Yeah, वो वैसा फील कर रही है जेन्युइनली। ओके आई exactly. एग्री, समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ मूड स्विंग हम ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, बट मोस्टली इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर यू आर डूइंग फॉर अ कंसिस्टेंट टाइम that showed up as Exactly. anger, frustration, or reactions like this. Okay, while that, as a human being, हमारा most of the behavior और pattern हमारे childhood से आता है। Hmm. जो भी हम एज अ पर्सन होते हैं वो हमारा चाइल्डहुड रिफ्लेक्ट करता हुआ आता है, एंड while Hmm. we grow, we get mature, we unlearn Hmm. certain things to fit in that. Hmm. So do you think जो ट्रॉमा का रूट कॉज होता है किसी भी का, वो चाइल्डहुड से आता है हमारे, and how it affect or shape as a person? Hmm. See, most common type of trauma is like known to people is childhood trauma. इसलिए लोग बोलते हैं कि हर चीज से, हाँ many things come from childhood, ठीक है। आपका बेसिक बिहेवियर, आपका इमोशनली चीजों से डील करने का तरीका comes from childhood, but trauma is not always from childhood. Okay. It can be from childhood. Childhood से कैसे हो सकता है कि you have seen domestic violence in the house, you have suffered some sort of abuse from one of your parents or both of your parents, you lost your parents, one of the parent or both the parents, then ऐसी कोई चीजें हो सकती है the cause of childhood trauma. But if the child is in teen or in college and they suffer from bullying, ठीक है, sexual abuse or a toxic relationship, then it can start from them that time also. Adult life में you suffered some major accident समझ लो, या फिर your loved one suffered some sort of accident or they died, और कोई like divorce, somebody has gone through divorce, somebody has gone through toxic or abusive or violent relationship, तो इन सब चीजों से भी trauma can start at any time, at any age in your life. It's It not can like come. only childhood. Hmm. तो बेसिकली जैसे एक यूजुअल बिहेवियर होता है कि जो भी एक पर्सन का बिहेवियर था वो चाइल्डहुड में सेट हो जाता है विद इन अ 5 to 7 year ऑफ स्पैम आई गेस, कि इतने में Hmm. एक पर्सन का बिहेवियर सेट हो जाता है। तो क्या वो पूरी लाइफ वैसा तो नहीं रहता, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम चीजें अनलर्न करते हैं, रीलर्न करते हैं। तो हाउ वन कैन शेप इट बेटर फॉर देमसेल्फ?
ऑब्वियसली आपने कहा सेल्फ अवेयरनेस है, बट बहुतों को पता ही नहीं है कि बेसिक चीजें हैं क्या। तो हम यस, कैसे बेसिक चीजें उन्हें बता सकते हैं कि आप कर सकते हो अपने एंड पे। या सी बेसिकली होता क्या है कि बचपन से यू आर परसीविंग थिंग्स फ्रॉम द आईज ऑफ योर केयर गिवर, जो आपका बेसिक केयर गिवर। अगर कोई बच्चा मम्मी पापा के साथ बड़ा हो रहा है, किसी कोई बच्चा राइट। दादा दादी के साथ बड़ा हो रहा हाँ। है, तो होगा क्या कि बचपन से आपके घर में जो एनवायरमेंट, आपने चीजों को जैसे परसीव किया, चाहे रिलीजियस वे में चाहे किसी और वे में, तो आपकी मेंटालिटी बन जाती है। राइट। सबकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ बिलीफ, कोर बिलीफ आपके सेट हो गए कि ऐसा 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 होता है सोसाइटी में, इसी तरह से चीजें होती हाँ। है, राइट। एंड एज यू ग्रो अप यू कीप परसीविंग न्यू थिंग्स, ठीक है। राइट। पर डिपेंड करता है कि आपका जो पुराना इन्फ्लुएंस है वो कितना हावी है आप पे अभी भी। आप उसी एनवायरनमेंट में हो या आप नए एनवायरनमेंट में, कोई बच्चा कहीं किसी गांव में बड़ा हुआ, देन दे मूव टू सिटी, देन दे मूव टू अब्रॉड, ठीक है। तो थ्रू आउट हिज लाइफ द चाइल्ड हैज सीन डिफरेंट मेंटालिटी, डिफरेंट कल्चर। तो धीरे धीरे वो उसका शेप चेंज होगा। ऐसा नहीं है उसके बिहेवियर, उसकी कोर बिलीफ चेंज नहीं होंगे, होंगे। राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर बिलीफ जो बचपन में बन जाते हैं फैमिली से वही रहते हैं। धीरे धीरे थिंग्स कैन चेंज। इफ देयर इज एन इंटररेशियल मैरिज, देन ऑल्सो यू स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू कल्चर। तो किसी किसी का मेंटालिटी ये रहती है कि वो ढल जाते हैं दूसरे कल्चर में, किसी किसी की रहती है नहीं नहीं ढल पाते वो लोग। राइट। So then problems start. So it's just that it depends from person to person how they take things, how they perceive the world. सो इज देयर एनी बेसिक गाइडलाइंस और बेसिक टिप्स फ्रॉम योर साइड कि बंदा बेटर फील करे या फिर बेटर अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सके, फिर ऐसे जनरल टिप्स। Yeah, I would say practice mindfulness. Mindfulness is nothing, just kind of कुछ नहीं कर सकते आप, इतना करो कि आप सुबह उठ के 5-10 मिनट, don't talk to anyone, don't check your phone, don't do anything, just sit with yourself, focus on your breath, you're breathing in, you're breathing out, you're breathing। दिन में एटलीस्ट 10-15 मिनट ऐसे होने चाहिए where you just sit quietly, ठीक है। कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आपके आसपास फोन होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सिट विथ योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, हाउ यू फील टुडे, what your body and your brain is trying to tell you, just अपने अंदर झांको, ठीक है। एंड सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप डांस करो, आप वॉक करो, आप रन करो, आप एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो दिन में एक बार। एंड ट्राई टू गो ऑन अ वॉक इन नेचर एवरी सिंगल डे। 10 मिनट जा सकते हो 10 मिनट जाओ, 30 मिनट जा सकते हो 30 मिनट जाओ, डिपेंड्स ऑन योर स्केड्यूल। एंड बिफोर द एट द एंड ऑफ द डे बिफोर स्लीपिंग, राइट वट एवर यू फील, जस्ट जर्नल, राइट। अपनी फीलिंग निकालो बाहर, ठीक है। ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए उसमें, पार्ट ऑफ दैट। आज के पूरे दिन में व्हाट वाज गुड इन, व्हाट गुड थिंग्स हैपेंड टू यू, राइट। some strangers smiled at you, you did something good to someone, someone appreciated you। अगर आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, just that you can write, I saw a beautiful flower today, I saw a beautiful bird today, राइट। something good, right? Just या write that। और क्या परेशान कर रहे हैं लिख दो, डोंट स्लीप विद दैट बैगेज। बैगिश। अगर लिख दोगे, निकाल दोगे रात को सोने से पहले हर चीज, तो एक तो इट्स काइंड ऑफ चीपेस्ट एंड फ्री थेरेपी फॉर योरसेल्फ, यू आर डूइंग जर्नलिंग, राइट। राइट। जब आप रोज आपको लिखने की आदत पड़ जाती है, स्लोली यू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर पैटर्न ऑल्सो। हाँ, और यू आपकी गेट जो अ। पिन पॉइंट है कि या यू हाँ गेट अ जी। क्लियर पिक्चर। एंड आपको राइट। कोई इंसान परेशान कर रहा है ऑफिस में या फिर घर में, या कोई टॉक्सिक इंसान है, कोई क्राइटेरिया है आपकी लाइफ में, तो उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, दिस इज द वे दे आर हाँ। बिहेविंग विद मी, दिस इज द वे दे आर लाइक टारगेटिंग मी और डूइंग थिंग्स विद मी, एंड हाउ आई शुड बी एबल टू डील विद दैट। ये भी राइट। लिखोगे, इज वट एवर जो भी चीज मुझे परेशान कर रही है, इज इट रियली इंपॉर्टेंट, मुझे फर्क पड़ना चाहिए उससे, ये भी लिखो। एंड देन राइट। आंसर यस और नो, right? एब्सोल्युटली। And when you do this every single day, you will feel relieved, you will be relaxed। क्योंकि अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपका पति है, आपकी मम्मी है, आप उनको हर रोज सेम चीज जाके बोलोगे तो वो परेशान हो जाएंगे कि मेरे बॉस ने ये करेक्ट। किया, मेरे इसने ये किया। Because they हाँ। will also like, they also don't want to become a dumpy heart for you, right? So it's राइट। just राइट। best that you write, you take that all, you just went out on a piece of paper, and then again before sleeping just focus on your breath. If you can meditate, meditate, right? And then राइट। just relax your body and then go to sleep। सोने से पहले आधा एक घंटा पहले सारे अपने गैजेट्स दूर रख दो। राइट। उठोगे सुबह जब, तभी उठ के आधा घंटा किसी भी गैजेट को टच मत करो।
ये 4-5 चीजें अगर हर कोई हाँ फॉलो करने लग जाए ना, तो वी बिकम लाइक इंटरनली वो कामनेस खुद ही आ जाए। हाँ, आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन का कि हमें हर चीज में फोन चाहिए। आई थिंक फॉर मी दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम इशू आई हैव टू वर्क ऑन। कैसे होगा ये पता नहीं, बिकॉज द लास्ट थिंग आई सी इज माई फोन, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई सी इज माई फोन। मे बी बिकॉज आईफोन में एक प्रॉब्लम है कि ऑटोमेटिकली सुबह इनका वाईफाई ऑन हो जाता है तो आपकी नोटिफिकेशंस बजना शुरू हो जाती है। एंड रात को तो लेट मैं देख के सोती हूँ, रैशनल थिंग आई स्क्रॉल इंस्टाग्राम एंड देन स्लीप। तो हाँ, दिस इज समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन टू बी मोर माइंडफुल फॉर आवर सेल्फ, इवन इफ नॉट फॉर अदर्स। फॉर बेटर लिविंग वी एग्जैक्टली। नीड टू बी स्विच टू बेटर थिंग्स। अपने आप तो कुछ नहीं हो जाएगा। But this was an amazing, unfiltered session. I really enjoyed it. It was so insightful. It was lovely to have you here. One last tip or advice for our people who gonna see this. फाइंड सम टाइम इन द होल डे फॉर योर ओन सेल्फ, कि आप अपने साथ बैठे हो, अकेले बैठे हो, यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड दैट्स इट। एंड जैसे आपने बोला कि आई कांट पुट माई फोन डाउन, तो Right, व्हाट यू कैन डू, रिप्लेस योर फोन विद अ पेन एंड पेपर और अ डायरी एंड पेपर। ये आदत बना लो, right. यू विल बी लाइक। I'm surely gonna try on it. But this was an amazing session. Thank you so much for coming with us. I'm so sure people would have a lot more questions than this, and we would love to have a part two for this. But thank you so much for coming on Unfiltered with this. Thank you so much, Divya. Even I felt so good. It's like really nice chatting with you. I had a good time. Thank you so much. Thank you.